हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं MCQ फ्रॉम शेयर टॉपिक। और इससे पहले हम शेयर टॉपिक के MCQ के पहले 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं। आज अगले 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरे 100 क्वेश्चन की ये MCQ हो जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आपके MCQ में पेपर में मिलेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, इस MCQ को आप करते जाइए और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों को एक एक करके तैयार करिए और जब भी कोई दिक्कत आती रही तो इसमें डिस्कस करते रहिएगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, पेइंग फी टू डायरेक्टर्स। तो इसका आंसर है स्टूडेंट राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। पूंजीगत हानियों को पूर्ण करने के लिए अंशों के प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर, for writing of preliminary expenses, for providing premium payable on redemption, for distribution of dividend. So here is answer for distribution of dividend. Next question. On which section of Company Act 1956 deals with the scheme of stock inverse? Answer is section 69 to 73. And here is question, जब प्रीमियम पर अंश निर्गमित किए जाते हैं कौन कौन से खातों को क्रेडिट किया जाता है? अंश प्रीमियम, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर अलॉटमेंट, हरण। तो हियर इज आंसर इज शेयर प्रीमियम। And next question is maximum number of members in public limited company is answer unlimited. Next question is after getting minimum subscription of shares of company has to allot share within 120 days is answer. Next question is if the minimum subscription is not received by the company then the refund of application money should be made within 10 days. Answer is 10 days. In case of public limited company after getting the missing value the company can start the business. Its answer is certificate of commencement of business. MOA में उल्लेखित पूंजी राशि की राशि कौन सी होती है? आंसर इज एथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज the difference between called up capital and paid up capital is issued capital, unpaid capital, reserve capital and uncalled. Is a answer is unpaid capital. When the shares are issued on purchase, the fixed assets what should be credited? Answer is premium should be credited. Next,
According to Company Act, of interest is to be paid on calls in advance. 6% is answer. Interest on calls in arrear is transferred to credit side of PL account. Interest on calls in arrear is transferred to credit side of PL account. The rate of discount on share can not exceed 10% of share face value. Discount on issue of share is shown on asset side of balance sheet is answer. Discount on issue of share is capital loss is answer. When share are forfeited, when share are forfeited, the share capital account is debited by called up capital. हरित अंशों के निर्गमन पर बट्टा हरित अंशों पर अब तक प्राप्त राशि से अधिक नहीं होना चाहिए. The profit of reissue on forfeited share transferred to capital reserve. The buyback of share may be done at par, at discount, at premium, at all. सभी पर किए जा सकते हैं. Real owners of a company are called. Real owners of a company are called as equity shareholder. Preference shareholder received fixed rate of dividend. Next question. A call money on share should not exceed 1/4 of share value. A new company cannot issue share at discount. Indian company cannot issue equity share when shares are issued to promoter for their services, then goodwill is to be debited. Security premium amount is shown under reserve and surplus. The allotment of shares should be completed within 120 days. The amount on share paid by the shareholder before it is actually due is calls in advance. The amount on share not paid by the shareholder after it
has been called by the company is Carlson area. Minimum subscription is decided by the board of director. When shares are forfeited, the amount already received is refunded, no, treated as a revenue profit, retained to by company, distribution as a। जब अंशों का हरण किया जाता है तो वास्तविक प्राप्त राशि कंपनी द्वारा दिखाई जाती है। Next question is, private company has minimum how many director? Answer is 2 director. Next question is, forfeited shares to become property of the government, property of the company, property of the shareholder, property of the कंपनी की संपत्ति। आंसर इज कंपनी की संपत्ति। द अमाउंट ऑफ सरेंडर्स शेयर इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर रिफंडिंग सरप्लस कैपिटल शेयर होल्डर इज क्रेडिट। आंसर इज शेयर होल्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी संचय के निर्माण के लिए किस प्रकार का संकलन आवश्यक है? सामान्य, विशेष, मंडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हियर इज आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम याचना खाते को पृथक से दर्शाया जाता है। लाभ हानि के विवरण के परिचालन से शुद्ध लाभ, शुद्ध आय शीर्षक में, लाभ हानि विवरण के व्यय शीर्षक में, चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में। तो आंसर चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में। Next one, calls in advance account is shown equity and liability side of balance sheet. Answer is, बकाया याचना राशि को चिट्ठे में दर्शाया जाता है प्रार्थिक अभित्रत लेकिन पूर्णतः नहीं में से घटाकर। Calls in arrears are shown in the balance sheet of a company by deducting its from the subscribed capital but not fully paid. अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है पूंजी की प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। इशू ऑफ शेयर ऑफ ए प्रीमियम इज कैपिटल रिसिप्ट। स्वेट समतांशों पर स्वीकृत कटौती को दर्शाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। Discount allowed on issue of said equity share is shown on the asset side of balance sheet is answer.
बकाया याचना आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाती है याचित पूंजी से घटाकर। आंसर इज कॉल्स इन एरियर इज शो इन द बैलेंस शीट डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल इज आंसर। अंशों के निर्गमन के समय सम मूल्य से ज़्यादा प्राप्त हुई राशि को किस खाते में दिखाते हैं? आंसर इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर अमाउंट रिसीव्ड above par value is credited to in which account? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रारंभिक व्यय की प्रकृति होती है पूंजीगत। नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज कैपिटल नेचर। नेक्स्ट, प्रारंभिक व्यय का संबंध होता है निर्माण में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरला लिमिटेड ने 15 लाख रुपए की संपत्तियां 100 रुपये वाले 25% क्रय ब्याज अंश निर्गमित द्वारा क्रय की। क्रय प्रतिफल को पूरा करने के लिए कितने अंशों की आवश्यकता होगी? आंसर इज 12,000 और 12,000 कैलकुलेट किया जाएगा टोटल 15 लाख को डिवाइड करेंगे 125 से। 15 लाख को डिवाइडेड करेंगे 125 से, तो जो अमाउंट आएगी वो 12,000 आ जाएगी। नेक्स्ट, जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल में अंश निर्गमन किए जाते हैं तो यह किस खाते में डेबिट किए जाते हैं? यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते समय ध्यान देना चाहिए कि प्रवर्तकों को जब उनकी सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है अंशों के बदले में, वो खयाती खाते में जाता है और अंश पूंजी खाते के और उन्हें शेयर कैपिटल के नाम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रेता को 1,20,000 शुद्ध संपत्तियों के प्रतिवर्ष लाख रुपए के पूर्णतः अनिर्गमित किए गए तो 20,000 रुपये पूंजी संचय खाते में जाएंगे। यहाँ पर संपत्ति ज़्यादा की मिली, शेयर कम के जाएंगे, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर लिमिटेड ने अभिषेक का चालू व्यवसाय 2,40,000 में क्रय किया। रोकड़ के बदले कंपनी ने क्रय प्रतिफल का भुगतान 10 रुपये वाले 20% क्रय ब्याज पर समता अंशों का निर्गमन किया, तो निर्गमित अंशों की संख्या 20,000 होगी। और ये 20,000 अंश जो है कैलकुलेट करके आएंगे 2,40,000 रुपये को डिवाइड करेंगे 12 रुपये से, तो 12 रुपये से डिवाइड करके जो नंबर आएंगे शेयर वो 20,000 के आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इज बैलेंस शीट ऑफ फॉरफिटेड बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर। यहाँ पर अंश हरण खाते के शेष को चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो अब आप इसका आंसर आप स्टूडेंट आप सभी लोग मुझे बता करके बताइए, मुझे भेजिए। सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़ा है, बाकी सभी के आंसर मैंने आपको कराए हैं। तो इस प्रकार से आज और पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चन कराए और सिर्फ एक क्वेश्चन ये आपके लिए दिया है। आप इसका
क्वेश्चन का आंसर मुझे मेरे नंबर पे बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और इसके साथ साथ अब इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले टॉपिक के अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके पास हों, जो समझ में ना आ रहे हों और जो आपके सॉल्व ना हुए हो, वो मेरे से सॉल्व करा लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।